Hello students, this is exercise 9.3 depend on geometric progression. And first question, find the 20th and nth term of GP 5/2, 5/4, 5/8. इसमें GP क्या था? उनके दो consecutive terms का ratio same. Given that a first term of GP is A is equal to 5/2 and common ratio R is equal to A2 upon A1 means second term upon first term. Second term क्या है 5/4 upon first term 5/2. This is equal to 1/2 and we find 20th term and nth term. This one we know that nth term of GP is equal to A into R to the power n minus 1. ये क्या है फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो. ए की वैल्यू हमारे पास 5/2 एंड आर 1/2 टू दी पावर n minus 1. तो सॉल्व करेंगे. nth टर्म ऑफ GP is equal to 5/2 into 1 की पावर n minus 1 यानी 1 होगा अपॉन 2 टू दी पावर n minus 1. यहाँ पे 2 की पावर कितना है ये 1 होगा. जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. तो 5 into 1 5 अपॉन 2 टू दी पावर n minus 1 इसकी पावर 1 है तो प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा n minus 1 plus 1. तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 टू दी पावर n. This is the nth term of GP. And हमें 20th term फाइंड करना है. इसमें n की जगह पे आप 20 पुट कर दीजिए. A20 is equal to 5 upon 2 to the power 20. ठीक है. और an इक्वल टू क्या था a into r to the power n minus 1. हमारे पास सारी वैल्यू है. 20th टर्म फाइंड करना है. a कितना है 5/2 r 1/2 to the power n minus 1. n कितना है 20 minus 1 is equal to 5/2 and 20 minus 1 कितना हो गया 19. 1 to the power 19 1 होगा and 2 to the power 19 is equal to 5 1 5 upon to the power यहाँ पे 1 है to the power 1 है और यहाँ पे 2 to the power 19 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 20. तो 20 term of GP is 5 upon 2 to the power 20. ठीक है स्टूडेंट्स नोट कीजिए. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द 12th term of GP whose 8th term is 192 and comma ratio is 2. Given that 8th term is equal to 192 and comma ratio R is equal to 2, we find 12th term of this GP. Different, we know that nth term of GP is equal to an equal to a into r to the power n minus 1. r to the power n minus 1. a क्या होगा a8 is equal to a into r की वैल्यू हमारे पास है कॉमन रेशियो गिवन है 2 टू दी पावर n minus 1 यानी a8 minus 1. बट स्टूडेंट्स 8th टर्म हमें गिवन है 192. इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 192 is equal to a into 2 to the power 7. 2 to the power 7. 192 is equal to a into 2 to the power 7. 2 into 2 into 2 7 times. You have 128. And a is equal to 192 upon 128 is equal to 3/2. a की वैल्यू हमारे पास ये फर्स्ट टर्म ऑफ दिस GP is 1/2 3/2 and कॉमन रेशियो r में गिवन है 2. अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो तो हम किसी भी GP का कोई सा टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. तो मैं स्टूडेंट डिफाइंड 12th टर्म स्टूडेंट an is equal to a into r to the power n minus 1. डिफाइंड 12th टर्म पुट n equal to 12th and a की वैल्यू हमारे पास है 3/2 and r गिवन है 2 to the power 12 minus 1. 12th टर्म फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो n equal to हम 12 पुट करेंगे इसमें. a12 is equal to 3/2 into 2 to the power 11. A12 is equal to
ये टू दी पावर 1 है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, एक पावर कम हो जाएगी, 3 इंटू टू टू दी पावर 11 माइनस 1 यानी कि 10, एंड A12 इज इक्वल टू 3 इंटू टू टू दी पावर 10, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, and 512, and 512 into 2, 1024, and multiplied by 3 क्या हो गया, 2703. This is the 12th term of GP. Question number 3rd. The 5th, 8th and 11th term of GP are PQRS respectively, so that Q square is equal to P into S. Given that 5th term P, 8th term Q and 11th term S, so that Q square is equal to P into S. We know that nth term of GP is equal to A into R to the power n minus 1. तो 5th term क्या होगा, A5 is equal to A into R to the power 5 minus 1. 5 minus 1 यानी कि R to the power 4. बट स्टूडेंट A5 में गिवन है क्या है, P, तो P is equal to A into R to the power 4. इस इक्वेशन फर्स्ट. एंड 8th टर्म क्या होगा, A8 is equal to A into R to the power 8 minus 1. बट स्टूडेंट्स 8th टर्म कितना है, Q. Q is equal to हो गया A into R to the power 7. एंड 11th टर्म क्या हुआ, इसमें n दिया है, हमें 11 पुट करना है. A11 is equal to A into R to the power 11 minus 1, 10. बट 11th टर्म कितना है, S है. S is equal to A into R to the power 10. This is third. My students, Q square equal to PS, ये हमें प्रूव करना है. तो नॉट टेक LHS. Q square, तो Q की वैल्यू क्या है, A into R, A into R to the power 7. इसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A square into R to the power 7 into 2 यानी 14. हम इसको ब्रेक करेंगे, ये इसको रखेंगे A into A and R to the power 14 can written as R to the power 4 and R to the power 10. और इसको रीराइट करेंगे A into R to the power 4. इन दो टर्म को ले लिया है, अब इन दोनों को ले लेंगे, हो जाएगा A into R to the power 10. Next one, by equation first and third. By equation first, A into R to the power 4 is equal to P. This is equal to P. And A into R to the power 10, ये क्या है, this is equal to S. यही मैं प्रूव करना था. जैसे मैंने LHS लिया है, Q square. स्टूडेंट हम RHS लेके भी इस तरीके से LHS फाइंड कर सकते हैं, या स्टूडेंट हम दोनों साइड लेंगे, इसको भी इसको भी, LHS एंड RHS, और लास्ट में यहाँ पे दोनों को सेम इक्वल प्रूव कर देंगे. ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4th, एंड 4th क्वेश्चन इज द 4th term of GP is the square of its second term and first term is -3, then find its 7th term. Given that 4th term of GP is equal to the square of second term and first term, let first term is A, given हमें -3, then find its 7th term. Let a common ratio of geometric progression is R. Then 4th term क्या होगा, A into R cube. nth term क्या होता है, an equal to A into R to the power n minus 1. तो 4th term क्या होगा, A into R cube is equal to second term AR whole square. A into R cube is equal to A square into R square. A को ट्रांसफर करेंगे, A से एक कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक R बचेगा. यहाँ में मिलेगा R इज इक्वल टू A, बट A की वैल्यू हमारे पास है -3, वी कैन से R इज इक्वल टू आल्सो
-3। अब स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन रेशियो भी है, तो जीपी का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड nth सेवेंथ टर्म। यू नो दैट nth टर्म ऑफ जीपी इज a into r to the power n minus 1। n की वैल्यू 7 है, a -3 है, r -3। a सेवेंथ इज इक्वल टू a की जगह पे -3 एंड r क्या है -3 टू दी पावर 7 minus 1। a सेवेंथ इज इक्वल टू -3 into -3 to the power 6 एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल हो गया -3 to the power 7। और स्टूडेंट्स अगर आपका इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो सेवेंथ टर्म हो जाएगा -3 to the power 7 -3 into -3 यानी 7 टाइम्स -3 into -3 एंड 7 टाइम। ये क्या होगा 3 3 9 हो गया 9, ये 9 एंड -3 9 9 कितना हो गया 81 एंड 9 3 जा -27 एंड it is 81 and -27 7 8 2 1 माइनस। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 5 के कई पार्ट्स हैं, इसमें से एक पार्ट हम करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट डू योरसेल्फ। Which term of GP and GP is 2 root 2 4 128 यानी कि इस GP का कौन सा टर्म 128 होगा। Let the n term of this GP is 128। फर्स्ट टर्म A क्या है 2 एंड कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू क्या होगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू √2 एंड लेट the nth term of GP is 128। हमें फाइंड करना है कि इस GP का 128 कौन सा टर्म होगा। तो हमने एज्यूम किया है कि इसका जो nth टर्म है वो 128 होगा। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो नंबर टर्म्स हमें फाइंड हो जाएगा। So we know that an is equal to a into r to the power n minus 1। बट स्टूडेंट्स हमने एज्यूम किया है, लेट क्या है an कितना 128 128 is equal to a 2 and r √2। √2 को can be written as 2 to the power 1 by 2 to the power n minus 1। 2 इधर ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा 128 अपॉन 2 मीन्स 64 इज इक्वल टू 2 to the power 1 by 2 में n minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज n minus 1 अपॉन 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 की पावर है, ये 64 है, इस 64 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे एंड ये हो जाएगा 2 to the power 6 इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 अपॉन 2। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड हम इसकी जो पावर का ना कंपेयर करेंगे तो 6 इज इक्वल टू n minus 1 अपॉन 2। 2 को ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n minus 1 एंड n इक्वल टू 12 प्लस 1 यानी कि 30। तो 120 क्या होगा 13th टर्म ऑफ दिस GP इज 128। तो क्या फाइंड किया 13th टर्म। Question number 6। Question number 6 is so easy question। Find the value of x if -2/7 x and -7/2 are in GP। अगर ये GP में है, शॉर्ट हमने आपको बताया था जब भी कोई तीन नंबर्स GP में हैं तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2 से 2 7 7 कितना माइनस माइनस प्लस हो गया एंड x इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 12th और सेम क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चंस डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज 0.15 0.015 0.0015 अप टू 20th टर्म। हमें 20 टर्म तक का इन सभी का सम फाइंड करना है। तो दैट इज फ्रेंड्स
a is equal to 0.15 and r common ratio second term upon first term 0.015 upon 0.15 is equal to 0.1 and n is equal to 20. Sum of n term Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 or a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. इसमें से कोई से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि ये हमें कब यूज करना है, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 और ये व्हेन r इज लेस देन 1. ठीक है, बाकी हम कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रेशियो क्या है, 0.1 है, 1 से कम है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे. Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r. जो वैल्यू हमारे पास है सारी वैल्यू पुट करेंगे. हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है. S20 इज इक्वल टू a कितना है 0.15 इंटू 1 माइनस r 0.1 टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस r गया 0.1. S20 is equal to 0.15 and 1 minus 0.1 to the power 20 upon 1 minus 0.1 कितना हुआ 0.9. यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है. जब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे ना एक 0 आ जाएगा. ये हो जाएगा S20 is equal to 0 यानी पॉइंट हटाएंगे 15 upon 90 and 1 minus 0.1 to the power 20. 15 से ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 upon 6 and 1 minus 0.1 to the power 20. Question number 11th. Evaluate sigma 2 plus 3 to the power k where k is equal to 1 to 11. ये क्या है, सिग्मा का साइन है. सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ टर्म्स. तो स्टूडेंट पुट k इक्वल टू 1 to 11 1 2 3 4 5. तो ये सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 2 plus 3 to the power k इज इक्वल टू होगा 2 plus 3 to the power 1. k की 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म होगा. सेकंड टर्म होगा 2 plus 3 to the power 2 प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 2 plus 3 to the power 3 प्लस अप टू 2 plus 3 to the power 11 3 to the power 11. अब इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है. इसमें 2 plus 3 to the power 1 कितना होगा 3. 2 plus 3 कितना होगा 5 प्लस 3 स्क्वायर 9 9 plus 2 कितना हो गया 11 प्लस 3 क्यूब 27 plus 2 29 प्लस अप टू 2 plus 3 to the power 11. ये कोई बड़ा नंबर होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं. अब फिर हमें देखना है कि जो सीक्वेंस है ये क्या एपी है या जीपी है. एपी में क्या होता था, डिफरेंस सेम होता था. 11 minus 5 कितना आएगा 6 एंड 29 minus 11 करेंगे तो कितना आएगा 18. तो ये इनका डिफरेंस सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा. अब जीपी में क्या होता था, रेशियो सेम होता था, कॉमन रेशियो होता था. सेकंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड. तो 11 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 29 अपॉन 11. ये इक्वल नहीं है क्योंकि ना तो एपी है और ना ही जीपी है. तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें ये मेथड ठीक नहीं है. तो क्या करेंगे, इसमें से ये जो टर्म 2 है 2 2 इनको अलग करेंगे और 3 to the power 1 2 3 है ना, इनको अलग सेपरेट करेंगे. तो इसमें ये हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म प्लस 2 सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का फर्स्ट वाला, कहाँ तक टू 11 टाइम, क्योंकि इसमें 11 टर्म है. प्लस क्या होगा 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 प्लस 3 क्यूब 3 to the power 11. इसमें 2 plus 2 plus 2 11 टाइम कितना हुआ 2 into 11 2 into 11 प्लस माय स्क्वायर ये जीपी है. अब ये जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3 एंड कॉमन रेशियो
3 टू दी पावर 1 क्या होगा 3 होगा, हमें इसमें से डिवाइड करना है तो 3 स्क्वायर कितना होगा 9/3 यानी कि 3। तो इसके लिए a कितना है 3 है एंड कॉमन रेशियो r इज आल्सो 3, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n कितने हैं 11। इसका सम फाइंड करेंगे, Sn इज इक्वल टू a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a क्या है 3 ब्रैकेट r कितना है 3 टू दी पावर n 11 माइनस 1 अपॉन r 3 माइनस 1 जो कि 11 इंटू 22 हो गया प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर 11 3 टू दी पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2। दिस इज इक्वल टू 22 प्लस 3 अपॉन 2 3 टू दी पावर 11 माइनस 1। ये काफी बड़ा नंबर होगा, हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if the sum of first three term is 39 upon 10 and their product is 1, then find the common ratio and number of terms. It's not given that sum of first three term a1 plus a2 plus a3 is equal to 39 upon 10 and this is first equation and their product a1 into a2 into a3 is equal to 1। तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स जब ये जीपी में है तो फर्स्ट टर्म क्या होता था a, सेकंड टर्म ar एंड थर्ड टर्म ar स्क्वायर। हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या होगा ar एंड थर्ड टर्म इज ar स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10 एंड इनका मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ar स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज इक्वल टू a क्यूब इंटू r क्यूब इज इक्वल टू 1। a इंटू a क्यूब r इंटू r स्क्वायर r क्यूब। माय फ्रेंड a क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन r क्यूब। r को ट्रांसफर कर दिया, नाउ क्यू रूट फ्रॉम बोथ साइड्स, क्यू रूट लेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन r। अब a की वैल्यू a इक्वल टू 1 अपॉन r इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, इसको नहीं आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब a इक्वल टू 1 अपॉन r इस इक्वेशन आप पुट कर दीजिए तो कितना होगा 1 अपॉन r प्लस a के प्लेस पर 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1 अपॉन r इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। एक r से एक r कैंसिल हो गया, यहाँ एक r से यहाँ मिलेगा 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा r और ये होगा 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। इस r को ट्रांसफर कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। अब इस टर्म को पहले लिखेंगे 10r स्क्वायर, अब 39r को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10r माइनस 39r क्या होगा माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल ऑर्डर, मिडिल टर्म ये क्या होगा 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दो को पेयर बना लेंगे, 5r इज कॉमन, यहाँ होगा 2r माइनस 5 माइनस 2 इज कॉमन, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2r माइनस 5 एंड 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू आएगी 5.2 और यहाँ से r की वैल्यू आएगी 2.5 एंड a क्या होगा, a क्या 1 अपॉन r, इसमें 1r इक्वल टू 5.2 देन a इक्वल टू कितना होगा 2/5, तो इसका रेसिप्रोकल है। और स्टूडेंट्स जब r इक्वल टू 5/2 होगा, जब r इक्वल टू 5/2 होगा 5/2 रेडियन 2/5
देन a इक्वल टू कितना होगा 5/2। तो वी फाइंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा 5/2 और 2/5 एंड हमारे टर्म होंगे क्या थे a ar एंड ar स्क्वायर। व्हेन r इक्वल टू 5/2 तो a इक्वल टू 2/5 तुम्हारे टर्म होंगे 2/5। सेकेंड टर्म क्या है ar, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5/2 इंटू 2/5 एंड थर्ड टर्म क्या होगा ar स्क्वायर। ये कितना है 2/5 इंटू r कितना है 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4। तो टर्म क्या होंगे 2/5 एंड 1 और ये होगा 5/2 और अगर r 2/5 है ये 5/2 है तो टर्म क्या होंगे ये बदल जाएंगे पलट जाएंगे 2/5 1 5/2 1 एंड 2/5। इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। सेलेक्टिंग टर्म्स इन जीपी, इसमें तीन टर्म्स का सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तो हम जीपी में जब भी तीन टर्म का जब सिलेक्शन करेंगे तो हमारे टर्म्स क्या होंगे a/r a एंड ar, ये टर्म सेलेक्ट करेंगे। इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि इन जो तीन टर्म्स हैं इनका सम कितना है 39/10 और इनका मल्टीप्लाई देखिए फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 है। यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा एंड a क्यू इज इक्वल टू 1 होगा एंड a इक्वल टू 1। इसका क्यू रूट ले लेंगे बोथ साइड से, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, a की जगह पे 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 1/r प्लस 1 प्लस a की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये r इज इक्वल टू 39/10। अब इसका एलसीएम आ जाएगा ये 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इससे भी सॉल्यूशन वही आएगा बट यहाँ से क्वेश्चन काफी इजी, इसकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स।